مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں بلکہ بھوک، بیماریوں اور جہالت کے خلاف لڑنے کا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیول اکیڈمی کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن بہت بھاری قیمت چکا کر حاصل کیا گیا۔ خطے میں امن سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ افغانستان میں مکمل قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں بلکہ بھوک، بیماریوں اور جہالت کے خلاف لڑنے کا ہے۔ جنگوں سے تباہی آتی ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امن و امان کی بحالی میں بہت قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے امن کی قیمت چکائی ہے۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ مذاکرات مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں۔ ہماری دوستی کی پیشکش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ شہری ٹریفک میں پھنسے رہے۔ وزیراعظم کے رہائش گاہ زمان پارک پر بھی احتجاج کے وجہ سے کینال روڈ پر شدید ٹریفک جام رہا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات طاہر جمیل خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی آمد نے شہر کی ٹریفک کو شدید متاثر کیا۔ نکل گیا۔ وزیراعظم ایئرپورٹ سے اپٹما اجلاس میں شرکت کے لیے جیل روڈ پہنچے تو ان کے لیے مال روڈ، کینال روڈ اور جیل روڈ پر روٹ لگا کر ٹریفک کو معطل کر دیا گیا۔ رہی صحیح کسر وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاجی مظاہرے نے نکال دی۔ وزیراعظم کی آمد کی اطلاع ملتے ہی ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین ان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر جمع ہو گئے۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں کینال روڈ کو 9 گھنٹے ٹریفک کے لیے بند رکھا۔ پاکستانی سمندر میں گیس کی تلاش اور دیسی مرغی اور انڈوں کی باتیں ان دنوں وزیراعظم کی ہر دوسری تقریر میں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر گیس نہ نکلی اور دیسی مرغیوں نے وافر تعداد میں انڈے نہ دیے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی بارے میں رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کرے ایکزو کمپنی کی جو کشتی پاکستانی سمندر میں تلاش کے لیے پہنچی ہے وہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان آئندہ 50 برس تک نہ صرف گیس میں خود کفیل ہو جائے اور اسے برآمد بھی کر سکے۔ ایکزون جو ہے یہ اس دنیا کی سب سے بڑی آئل ڈرلنگ کمپنی ہے۔ 27 سال کے بعد پاکستان آئی ہے۔ ان کا ہیڈ جو ہے وہ میرے سے ملنے آیا تو مجھے کہتا کہ ہم نے ایک چیز آف شور دیکھی ہے سمندر کے اندر جو ایک ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ گیس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تب، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم ان کی کشتی آ گئی، اب پہنچ گئی اور وہ ڈرلنگ شروع کر رہی ہے۔ اور اللہ کرے دیسی مرغیاں اللہ کی رحمت بن کر ہر گھر میں دیسی انڈوں کے ڈھیر لگا دیں، جس سے غریبوں کے وارے نیارے ہو جائیں۔ وزیراعظم ان دنوں ان دونوں حوالوں سے بہت حساس ہو گئے ہیں۔ انہیں گیس کے حوالے سے یہ دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ نہ نکلی تو کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی اس کے سمندر کے نیچے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جب ہم ڈرل کریں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پہ ہمیں لگ تو رہا ہے گیس ہے، لیکن ہو سکتا ہے گیس لیک کر گئی ہو، تو ہمیں پتہ نہیں کہ لیک کی ہے یا وہاں ہے۔ لگتا ہے کہ گیس کی دریافت اور دیسی مرغیاں وزیراعظم عمران خان کی معاشی پالیسی کے 2 اہم ستون بن گئے ہیں جن کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر گیس نہ نکلی اور مرغی انڈا فارمولہ نہ چلا تو نئے پاکستان اور خود تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ اللہ خیر کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان کے پسندیدہ وزیر اعلیٰ شاید اپنے کپتان کے لیے ہی بند سور رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی گارڈ نے ویڈیو بنانے والے کو بات پھیلانے سے روک دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
पंजाब में नून लीग को एक और धचका। 14 अजला के जिला काउंसिल्स के चेयरमैन साथ छोड़ गए। लाहौर में 14 जिलों के चेयरमैन ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में पीटीआई में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। कप्तान के खिलाड़ी बनने वालों में विहाड़ी से पीर गुलाम, मोहिउद्दीन चिश्ती, बहावल नगर से सैयद कलंदर हुसैन, भक्कर से अहमद नवाज नवाई शामिल हैं। बहावलपुर से दिलशाद कुरैशी, चिन्योट से सकलैन और फैसलाबाद से चौधरी जाहिद नजीर, जबकि जंग से नवाब बाबर खान और सियाल ने भी नून लीग का साथ छोड़ दिया है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस फैसले के दिन क्या होगा? मुस्लिम लीग नून ने इस बारे में हिकमत अमली तैयार कर ली है। नवाज शरीफ फैसले के फौरी बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर सजा की सूरत में नैब ने भी तैयारी को हतमी शक्ल दे दी है। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, आगाह कीजिएगा, क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और नैब की जानिब से क्या तैयारियां हैं? जी, दोनों तरफ से तैयारियां तकरीबन हतमी मराहिल में हैं और नैब की जानिब से भी जो है वो कुछ सिक्योरिटी मांगी गई है। और हमारे ज़रा ये कहते हैं कि 36 घंटे चूँकि इस फैसले को आने में बाकी हैं, तो इस हवाले से रेंजर्स की मदद तलब की गई है जुडिशल कम्प्लेक्स में कि जब 24 दिसंबर को ये फैसला आएगा तो रेंजर्स भी वहाँ पर तैनात होगी सिक्योरिटी के लिए। और इसके अलावा एफसी और पुलिस के 500 से ज़्यादा एहलकार तैनात होंगे। ज़राए का ये कहना है कि ये फैसला जो है सुबह 10 बजे से कबल ही सुना दिया जाएगा और तमाम तर इंतजामात की मौजूदगी में ये फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जानिब से भी जो है वो इस पर मशावरती अमल जारी है। उन्होंने पहले पार्टी से मशावरत की थी, लेकिन कल जो है वो उन्होंने अपने वकला का एक अहम मशावरती इजलास तलब किया है जिसमें ख्वाजा हारिस भी मुमकिन तौर पर शरीक होंगे और उनसे मशावरत के बाद फिर हतमी राय कायम की जाएगी कि क्या नवाज शरीफ जो है वो रायवंड में ही ये फैसला सुने या फिर वो एहतसाब अदालत आएँ। अगर रायवंड में सुनेंगे तो फिर वो एक यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जबकि नैब की जानिब से उनकी मुमकिन गिरफ्तारी या उनके खिलाफ फैसला आने की सूरत में भी तैयारियां मुकम्मल हैं। 4 से 5 टीमें नैब की जो है वो इस वक्त तैयार की गई हैं जो कि खसूसी तौर पर रायवंड में मौजूद रहेंगी। फैसला के वक्त अगर नवाज शरीफ रायवंड में मौजूद होते हैं तो रायवंड का मुहासरा किया जाएगा और यूं ही उनके खिलाफ अगर फैसला आता है तो फिर जो नैब की टीमें हैं वो मकामी पुलिस की मदद से फैसले पर अमल दरामद के लिए गिरफ्तारी करेंगी। और ज़राए हमारे ये भी कहते हैं कि अडियाला जेल की बजाय नवाज शरीफ को मुमकिन तौर पर लाहौर की किसी एक जेल में रखा जाए, चूँकि सिक्योरिटी के खदशात होंगे और कारकुनों की भी जो है वो आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस सारी सूरत से बचने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी फोर्सेज वहाँ तैनात हैं उनको बाहिफाजत जेल तक पहुँचाया जाए। तो ये वो तैयारियाँ हैं जो कि नवाज शरीफ के फैसले से कबल की जा रही हैं और फैसला जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक जो है वो फैसला तहरीर कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा इस सिलसिले में 24 को ये फैसला आना है और तैयारियां मुकम्मल हैं। सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अहम खबर के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सनम भुट्टो ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सीनियर रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में सनम भुट्टो को मुतबादल किरदार देने की तजवीज़ दे दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास 26 दिसंबर को नोडेरो हाउस में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सनम भुट्टो जो कि बैरून मुल्क से वापस पहुंची हैं, अहम इजलास में उन्होंने शिरकत की है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादल किरदार सनम भुट्टो को देने पर गौर किया गया है। और अहम खबर के आशियाना हाउसिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ज़िमनी रेफरेंस में 13 अफराद को नामजद किया गया है। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा ज़िमनी रेफरेंस में नामजद हैं, जबकि नदीम ज़िया, कामरान कियानी और शाहिद शफीक, बिलाल कुतबाई, मुनीर ज़िया, खालिद हुसैन, अली साजिद, चौधरी शफीक और इम्तियाज हैदर का नाम भी शामिल है। आशियाना हाउसिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है जिसमें 13 अफराद को नामजद किया गया है।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह ताहिर अशरफी को मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए 26 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। ज़रा का ये कहना है कि FIA ने ताहिर अशरफी को तहकीकात के लिए नोटिस भिजवा दिया है। ताहिर अशरफी पर गैर मुल्की NGOs के जरिए मुल्क से बाहर पैसे भेजने का इल्ज़ाम है। इसी बारे में मजीद जानते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि SCCP ने ये केस FIA को भेजा था, जिसके बाद FIA ने अल्लामा ताहिर अशरफी को 26 दिसंबर को लाहौर में तलब कर लिया गया है और अल्लामा ताहिर अशरफी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर मुल्की NGOs के जरिए मुतअद्दिद बार रकूम बैरून मुल्क भिजवाई है। FIA की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अल्लामा ताहिर अशरफी 26 दिसंबर को पेश होकर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए सवालों का जवाब दें। बहुत शुक्रिया वकास आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, खतरनाक आइस का नशा कराची की जामियात तक भी जा पहुंचा। NED यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, क्लासरूम्स और सीढ़ियों पर बैठकर तलबा खुलेआम नशा करने लगे हैं। यही नहीं, आइस डीलर्स यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर तलबा को जहर फरोख्त करने लगे हैं। इसी बारे में देखिए अली रजा की ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची की जामिया NED के तलबा मंशियात के चुंगल में फंस गए। इंजीनियरिंग करने वाले तलबा आइस जैसे मोहल्लिक नशे में मुब्तला हो गए। NED यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स क्लास रूम्स, मुख्तलिफ शोबाजात की सीढ़ियाँ और हॉस्टल्स में आइस के नशे का लुत्फ लेने लगे और इस काम में सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ भी किसी से पीछे नहीं। 24 न्यूज़ की टीम के स्टिंग ऑपरेशन ने आइस के धुएं में छुपे यूनिवर्सिटी में जारी मकरू धंधे से पर्दा उठा दिया। आजम नामी डीलर यूनिवर्सिटी के गेट पर आइस फराम करता है, जो तलबा से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। डांस पार्टी और पोश इलाकों के बाद यूनिवर्सिटीज़ में सरायत करता आइस का महंगा नशा मुस्तकबिल के मेहमानों का मुस्तकबिल रोशन करने के बजाय तारीक कर रहा है। NED यूनिवर्सिटी में खतरनाक मनशियात आइस के खुले आम इस्तेमाल पर वाइस चांसलर बेखबर हैं। डॉक्टर सरोज लोधी कहते हैं कि जामे में किसी किस्म की मनशियात लाई या इस्तेमाल नहीं की जा रही। उन्होंने और क्या कहा, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं समझता कि हमारे NED यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। बड़ी वजह यह कि हम बड़ी नज़र रखते हैं और आने जाने वालों पर भी नज़र रखी जाती है, हॉस्टल्स पे भी नज़र रखी जाती है और बच्चों को पता है कि यहाँ पर एकेडमिक और अदरवाइज डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो है, तो बच्चे भी मुहतात रहते हैं। मैं इसलिए से तरदीद करता हूँ कि NED यूनिवर्सिटी में सिगरेट बिकती ही नहीं है और इट्स अ नो स्मोकिंग कैंपस। और अगर कोई बच्चा सिगरेट पीता अगर देखा भी जाता है, ड्रग्स, आइस, तो वो तो ज़ाहिर उसके लिए कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना, तो वो सब चीज़ें जो हैं उस पर तो हम बड़ी कड़ी नज़र रखें। इसी बारे में मजीद आपको बताएंगे, कराची पुलिस आइस सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई। बिलावल चौरंगी से आइस का सप्लाई लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम निजामुद्दीन मेंगल रोजाना गाड़ी पर हब चौकी से डिफेंस आइस सप्लाई करने आता था और अब कार्रवाई की गई और इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आइस सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है और बिलावल चौरंगी से आइस का सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको मजीद बताएं कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम निजामुद्दीन मेंगल रोजाना गाड़ी पर हब चौकी से डिफेंस आइस सप्लाई करने आता है। ये क्रैकडाउन जारी है और आपको बताएं कि इसी क्रैकडाउन के नतीजे में ये आइस सप्लायर जो था इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। आपको बताते चलें, शहर कायद में मनशियात की फरोख्त में इजाफे पर बात करते हैं SP के लेफ्टिनेंट सुहाय अजीज से। बहुत शुक्रिया सुहाय अजीज साहिब आपके वक्त का। शहर कायद में मनशियात की फरोख्त की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, अब हमारी पूरी यही कोशिश है कि ड्रग्स के ऊपर हम पूरी तरीके से काबू लाएं। कल ही हमने एक ड्रग सप्लायर पकड़ा है जो रोज हब से आता है और यहाँ पे आके फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स को ड्रग्स सेल आउट करता है। ही कम्स फ्रॉम हब, डेली आता है और रोज ये 15 पैकेट्स लेकर आता है। इसका बड़ा लिमिटेड क्लाइंटेल है, सिर्फ उनको ही सेल करता था। और जब हमने उसको अभी अरेस्ट किया और उसका CRO करवाया तो हमें ये भी पता चला कि वो ATC का PO है, इश्तिहारी है खुददार से। इसका ये मतलब है कि जो लोग सेलर्स हैं उनमें फिर दूसरे क्रिमिनल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं और ये फिर शहर में ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं। हमने इन टीमें तश्कील दी हैं और अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाया है ताकि हम सारे ड्रग सप्लायर इन तक पहुँच सकें
اور جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ سپلائی چین بریک ہو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ مینوفیکچرر کون ہے اور یہ بھاری مقدار میں کہاں سے آتی ہیں۔ صحیح، اچھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ قوم کے جو معمار ہیں ان کو اس لت سے بچانے کے لیے، ایڈکشن سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں آج کل جو مطلب میری یہاں پہ آبزرویشن ہے اسپیشلی میرے ڈویژن میں، تو کافی بچے جو اس طرف ہیں وہ ان اٹینڈڈ بچے ہیں جن کو لت لگ جاتی ہے، ان اٹینڈڈ ہیں یا پھر ایسا ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، پڑھائی کا پریشر برداشت نہیں کر پاتے تو اپنے ان دوستوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو کہ ڈرگس کا شکار ہیں اور وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ اس کی ایڈکشن اتنی شدید ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ آئس لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ لینا شروع کرتے ہیں، پہلے فری میں ان کو ملتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پیسوں سے لینا شروع کرتے ہیں، اور مین ٹائم جب یہ بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر سپلائر اس کو ہی اپنا سیلز پرسن بنا لیتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سوہا عزیز صاحبہ 24 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی کے معاملے پر وزیر داخلہ کے بیان کی اے این ایف نے نفی کر دی ہے۔ کون سچا ہے کون جھوٹا، 24 نیوز اصل حقائق سامنے لے آیا۔ صدام مانگٹ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے انکشاف کیا کہ اسلام آباد کے اداروں میں 75% طالبات اور 55% طلبہ منشیات استعمال کرتے ہیں، جن میں تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال زیادہ ہے۔ ان میں قائد اعظم یونیورسٹی پہلے نمبر پر، جبکہ اسلامک یونیورسٹی، فاسٹ یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی سمیت اسکول اور نجی تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ بچوں کے بیگز میں کرسٹل آئس کو سویٹس ریپرز پراپر طریقے سکولوں، بڑوں سکولوں میں، کینٹین میں بک رہی، کیفیٹیریاز میں، ہوٹلز میں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پاس سویٹس ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ذمہ دار افسر کے مطابق صرف 5 سے 8% طلبہ منشیات کے عادی ہیں، جبکہ پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رواں برس تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف 83 مقدمات درج کیے گئے۔ پولیس حکام نے مقدمات میں 93 ملزمان کو جوڈیشل کیا۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے، حکومت معاملے پر بیان بازی کی بجائے حل نکالے۔ اس پہ جو ہے نا روک تھام ہونی چاہیے، اور ہم بھی چونکہ والدین ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے، دن پہ دن آگے کام بڑھتا ہی ہے، ابھی اسے روکے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ والدین کا مزید کہنا تھا کہ اب تو منشیات بازاروں میں عام موجود ہیں جو کسی زہر سے کم نہیں۔ صدام مانگٹ، 24 نیوز، اسلام آباد۔ سرگودا یونیورسٹی کے لاہور کیمپس کے پروفیسر کی ہلاکت کے معاملے پر پروفیسر میاں جاوید کو اسپتال لے جانے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پروفیسر جاوید کو اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے اور انہیں مصنوعی طریقے سے سانس دیا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کو بھی کیمپ جیل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پروفیسر جاوید جن کی ہلاکت ہوئی تحویل میں، ان کی ہسپتال لے جانے کی CCTV فوٹیج اب سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں مصنوعی طریقے سے سانس دیا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس بھی کیمپ جیل کے اندر جاتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں جاوید کی ہتکڑی میں انتقال کے معاملے پر حکام ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں میاں جاوید کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی، تشدد کے بھی کوئی نشان نہیں ہیں۔ سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے CEO میاں جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میاں جاوید کا انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا۔ میاں جاوید کے جسم پر کوئی تشدد کا نشان موجود نہیں۔ میاں جاوید کی ہلاکت پر غفلت کے مرتکب افسران کا تعین نہ ہو سکا۔ جیل انتظامیہ کے مطابق میاں جاوید کو جیل سے زندہ حالت میں روانہ کیا، جبکہ اسپتال انتظامیہ نے موقف دیا کہ میاں جاوید ریسیو ڈیڈ ملے تھے۔ میاں جاوید ہتکڑیوں میں لپٹے رہے، متعلقہ پولیس جوڈیشل اہلکاروں کو ڈھونڈتے رہے۔ نیب ترجمان کے مطابق میاں جاوید کے انتقال میں نیب کا کوئی کردار نہیں۔ میاں جاوید کو 2 ماہ قبل 23 اکتوبر کو صحت مند حالت میں جیل بھیجوایا۔
जहेज की लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए नौजवान नस्ल खुद मैदान में उतर चुकी है। सोशल मीडिया पर स्टॉप जहेज खोरी के नाम से एक ट्रेंड जेरे गर्दिश है, जिसमें एक ठप्पा भी वायरल है। मेहंदी या किसी रंग से लगाया ये ठप्पा नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी तस्वीर के साथ शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद के एक वाक़े की बात करते हैं। अब ये शौक था या कुछ और ये तो पता नहीं, लेकिन ब्लू एरिया इस्लामाबाद के एक शख्स में वज़ीर आज़म बनाने का मुतालबा लिए टावर पर एक शख्स चढ़ गया, जिसके बाद इस शख्स को मोबाइल टावर से ड्रामाई अंदाज में उतारा गया। फयाज से कहा गया कि वज़ीर आज़म तुमसे बात करना चाहते हैं। कॉमेडियन शफात अली ने इमरान खान की आवाज़ में फयाज से बात की, जिस पर वो टावर से उतरा। ये तमाम तर मामला था क्या, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम के दिलों में बसते हैं। सच ही कहते होंगे। अगर सच न कहते तो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में टावर पर चढ़ा शख्स वज़ीर-ए-आज़म से बात करने का सुनकर टावर से नीचे न उतरता। किस्सा कुछ यूं है कि फयाज नामी शख्स टावर पर चढ़ गया और मुतालबा किया कि 60 रोज के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। मुल्क के हालात बदल दूंगा, कर्ज भी उतार दूंगा। अब फयाज कौंसलर का इलेक्शन तो जीत नहीं सकता था, उसे वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनाया जाता। सो पुलिस ने इसे उतारने के लिए कॉमेडियन शफात अली की हिदमात ली। कॉमेडियन शफात अली ने वज़ीर-ए-आज़म बनकर फयाज से कहा कि मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। शफात उसी अंदाज में बयान करें जिस अंदाज से आपने फयाज को घायल किया। मैंने उसको ये कहा कि मैं 6 साल तुमने मेरी खिदमत की है, तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते। यानी एक आदमी मुझे कह रहा है कि मैं इमरान खान का खिदमत करता रहा हूँ और वो मेरी आवाज नहीं पहचानता। ये मुझे यकीन नहीं आता। मेरा कारकुन, मेरा टाइगर कोई ऐसे बात कर सकता। मुतालबा पूरा होने पर 2 घंटे बाद फयाज की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की इंतहाबी मुहिम खत्म हुई और वो नीचे उतरा, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अमन बहाल होने के बाद कराची वालों ने अपनी सरगर्मियां फिर से शुरू कर दी हैं। रोशनियों का शहर रातों को फिर से जगमगाने लगा है। स्ट्रीट क्रिकेटर भी बहाल होने लगी और इतना ही नहीं, DGI-SPR भी सड़क पर नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। शहदा की कुर्बानियां रंग लाई। कराची में पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों, रेंजर्स और शहरियों की कुर्बानियों के बाद बिलाखिर अमन का सूरज तुलू हो गया। कोई और नहीं बल्कि पाक फौज के मेजर जनरल DGI-SPR आसिफ गफूर कराची के शहरियों के साथ नाइट क्रिकेट खेलते नजर आए। क्लिप में देखा जा सकता है कि आसिफ गफूर ने सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए चौके छक्के भी लगाए और एक शख्स को मुंह पर बॉल भी जड़ दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये फुटेज लगाई। कराची में अमन की बहाली पर खुदा का शुक्र अदा किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने क्रिकेट खेलने के बाद मंचलों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ये तस्वीर ट्वीट की और गवर्नर सिंध, क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, शहजाद रॉय और रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत का शुक्रिया अदा किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कराची के खिलाड़ियों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि कराची की सड़कों पर रात में क्रिकेट खेलने को उन्होंने एंजॉय किया। यहाँ पर आपको बताएंगे कि अली तरीन ने PSL की 6ठी टीम को नाम देने के लिए लोगों मांग ली। अली तरीन ने ट्वीट किया है कि मेरी टीम के नाम में मुल्तान जरूर होगा, ताहम सुल्तान को तब्दील करना है। कहते हैं ऐसे नाम तजवीज़ करें जो जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी भी करे। जिसके नाम पर इत्तफाक हो गया वो उसे अपने साथ मैच दिखाएंगे। अली तरीन की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और PSL की 6ठी टीम के नाम के लिए राय मांगी गई है।